सिविल निर्णय लेखन। यदि कोई फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने पेपर में आती है तो उसके पढ़ के आपको जजमेंट लिखना है। कैसे जजमेंट लिख सकते हैं अपन? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो किसी एग्जाम में पूछी भी गई है, एडीजे या आरजेएस में से किसी एक में। क्या फैक्चुअल पोजीशन थी इसमें? द brief of the suit are that Messrs. BZ and Company Nokha is a partnership firm. Messrs. P. Patel and Company Unja entered into contract for the delivery of the 200 bags of the cumin for the consideration of the rupees 3.2 lakh from the. However, before the actual transshipment of the goods, Messrs. S. Sethia and Company, Messrs. S. Sethia and Company, the present plaintiff purchased the said goods from the Messrs. BZ and Company Nokha after the full payment of the value of the goods. Accordingly, the original vendor Messrs. P. Patel and Company Unja was instructed to deliver the goods to the plaintiff company. The goods were dispatched from the Unja to Bikaner through the Northwestern Railway. The goods were not delivered by the railway to the plaintiff company within the reasonable time, and therefore its representative contacted the concerned authority of railway at Bikaner time so many times and again. However, the concerned authority informed that the goods has not reached to its destination. So far, later after a lapse of about 1 month, the Vendi plaintiff company was informed about the arrival of the goods at Bikaner railway station. The goods were brought in a wagon different than a wagon where in the same were initially transshipped. The Vendi plaintiff company found that the goods were in a highly damaged condition and not in a fit state for the human consumption. Therefore, it claims for the open delivery. The railway claimed the demurrage which was duly paid by the plaintiff company. During the open delivery, it was found that the goods were damaged to such an extent that the same were not fit for the human consumption. The assessment of the damages was made by the railway authority and the loss suffered was quantified at rupees 1,60,000. The Vendi plaintiff company, after serving a notice upon the railway authority under section 80 of the Civil Procedure Code 1908, read with the section 106 of the Railway Act 1989, has filed the suit claiming the compensation for the damage caused to the goods and the interest therein to a sum of the rupees 1,60,000 and the rupees 8,000 respectively. After inquiry, the suit was registered in a register of the civil suits. This line is not given under the question. It is the part of the judgment writing. After that, summon issued to the defendant authority and the other concerned which were produced in a court after the due service. Defendant appeared before the court on the date of the hearing and made the submission for the filing the written statement for the defense and answer to the claim of the plaintiff company. Defendant filed the written statement wherein the transshipment of the goods from the Unja to Bikaner admitted. However, the ownership over the goods of the plaintiff company was denied. Ownership over the goods of the plaintiff company was denied by the defendants. It was also averred that the accident occurred due to the act of God. Accident occurred due to the act of the God and not on account of the negligence of the railway employees. The damages assessment report is not admissible in evidence
the plaintiff company has no right to file a suit for the damages, or the plaintiff company has no right, title or interest in the disputed goods and has no locus standi to file the said suit. The plaintiff company did not serve the notice in conformity to the section 106 of the Railway Act 1989, and the present suit of the plaintiff company is liable to be dismissed. The Railway Claim Tribunal Act 1987 under section 115 has the jurisdiction in the claim for the damages against the railways, and the civil court has no jurisdiction power to entertain the such suit, and the present suit is not maintainable as it is barred by the law and liable to be dismissed. हिंदी में आप देखेंगे वाद के संक्षिप्त तथ्य है वो क्या थे वाद पत्र के अंदर जो वादी लेके आया। मैसर्स बीजी एंड कंपनी नोखा एक भागीदारी फर्म ने मैसर्स पी पटेल एंड कंपनी ऊर्जा से 200 बोरी जीरा 3,20,000 रुपए में के प्रतिफल के बदले में खरीदने का एक करार किया, लेकिन माल के वास्तविक परिवहन से पहले वादी मैसर्स एस सेठिया एंड कंपनी बीकानेर ने मैसर्स बीजी एंड कंपनी नोखा से उक्त माल संपूर्ण कीमत का संदाय कर खरीद लिया। तदनुसार मूल विक्रेता मैसर्स पीजी पटेल एंड कंपनी को मूल खरीदार बीजी एंड कंपनी ने माल की सुपुर्दगी में वादी कंपनी को देने के लिए निर्देशित किया गया। माल ऊर्जा से बीकानेर के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जरिए भेजा गया। माल युक्त समय में वादी कंपनी को रेलवे ने सुपुर्द नहीं किया। वादी कंपनी के प्रतिनिधि बार बार बीकानेर में रेलवे से संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया, परंतु संबंधित प्राधिकारियों ने माल गंतव्य स्थान पर तब तक नहीं पहुंचना बताया। बाद में करीब 1 माह पश्चात वादी कंपनी को माल रेलवे स्टेशन बीकानेर पहुंचने की सूचना है वो दी गई। माल प्रारंभ में जिस वैगन से भेजा गया था उससे भिन्न वैगन से है वो लाया गया। वादी कंपनी ने यह पाया कि माल काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में था और इसलिए उसने माल की खुली सुपुर्दगी देने की मांग की। रेलवे द्वारा विलंब शुल्क की है वो मांग की गई, जिसका संदाय है वो वादी कंपनी द्वारा कर दिया गया। खुली सुपुर्दगी के दौरान यह पाया गया कि माल इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था कि वो मानव उपभोग योग्य है वो नहीं रहा। रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा क्षति का निर्धारण किया गया और क्षति की राशि ₹1,60,000 रुपये निर्धारित की गई। वादी कंपनी के द्वारा रेलवे प्राधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सपटित धारा 106 रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत नोटिस देने के बाद माल में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज क्रमशः 1,60,000 रुपये और 8,000 रुपये की मांग करते हुए उक्त वाद है वो पेश किया गया। ये वाद पत्र के वो संक्षिप्त में तथ्य थे। देन प्रतिवादी गण जो है प्रतिवादी रेलवे प्राधिकारी एवं अन्य को समन जारी किए गए, जो बाद संयुक्त तामिल न्यायालय में पेश हुए। सुनवाई की तारीख पर प्रतिवादीगण उपसंजात हुए और दावे का उत्तर देने के लिए बचाव में लिखित कथन पेश करने का निवेदन किया। प्रतिवादी के द्वारा बचाव का लिखित कथन पेश किया गया, जिसमें ऊंजा से माल की बीकानेर रवानगी को स्वीकार किया गया। वादी कंपनी के माल के मालिक होने के तथ्य को अस्वीकार किया गया। ईश्वरीय कृत्य से माल क्षतिग्रस्त होने और रेलवे कर्मचारियों की कोई उपेक्षा नहीं होने का अभिकथन किया गया। क्षति निर्धारण प्रतिवेदन का साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने का वो कथन किया गया। विवादग्रस्त माल में वादी कंपनी का कोई स्वत्व या हित नहीं होने से उसे दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, ये कथन भी किया गया। वादी कंपनी के द्वारा नोटिस रेलवे अधिनियम की धारा 106 के अनुरूप प्रेषित नहीं करने से वादी कंपनी का वाद खारिज होने योग्य है, ये कथन भी किया गया। और अल्टीमेटली वादी कंपनी का वाद का विचारण रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम
रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 15 के अनुसार सिविल न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाना वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। ये सारे एवरमेंट्स है वो डिफेंडेंट ने WS के अंदर है वो रेज किए। और टू राइट द जजमेंट अपॉन द दिस फैक्ट्स, इन तथ्यों के आधार पर आप है वो निर्णय लिखिए। ये आपके सामने वो क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे आपको है वो जजमेंट लिखना है। इस फैक्चुअल पोजीशन को पढ़ने के बाद चूंकि इसमें कितने रुपए की वसूली का है वो बात लाया जा रहा है, 1,60,000 प्लस 8, 1,68,000 रुपए की वो क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली का बात है। सबसे पहली बात आती है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होगा इसमें। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ द सो एंड सो, या कौन सा है वो न्यायालय होगा। तो इसके लिए आपको पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन का पता होना जरूरी है, क्योंकि यदि राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ 2 लाख रुपए तक का पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है वो सिविल जज का जो इनिशियल कोर्ट है उसके पास है, और 2 से 5 का जो है सीनियर सिविल जज के कोर्ट के पास है, और 5 लाख से ज़्यादा का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। तो इस फैक्चुअल पोजीशन से अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होगा, कोर्ट ऑफ सिविल जज। इनिशियल जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। जब ये तय हो गया कि सब कोर्ट है वो सिविल जज का कोर्ट है, तो देन कोई आपको इमेजिनरी या काल्पनिक है वो नाम देना होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, और डेजिग्नेशन है वो क्या आएगा, RJS आएगा। ओरिजिनल सूट नंबर और ईयर, कोई इसमें वर्ष दे नहीं रखा था कि कौन से साल में वो सूट फाइल किया गया। तो आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं या 2022 में देंगे मार्च में या फरवरी लास्ट में, तो आप ईयर 2022 भी लिख सकते हैं उसमें ऑब्लिक करके, और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप। अब इसके अंदर जो इस जजमेंट को लिखने से पहले आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि इसमें इशू क्या बन रहे हैं, विवादित इस केस के अंदर क्या बन रहे हैं। तो इसमें अपन एक साथ दोनों बातों को सीखेंगे कि इस फैक्चुअल पोजीशन पे इशू क्या बनेंगे और उन इश्यूज पे जजमेंट है वो क्या रहेगा कोर्ट का। पहले तो इशू देख लेते हैं। यस, ये थर्ड जो पैरा इसमें मैंने इशू भी मेंशन कर रखे हैं कि हो सकता है आपसे अलग से इशू भी पूछ लिए जाए कि इस फैक्चुअल पोजीशन के आधार पे आप इशू फ्रेम करिए। क्या क्या इशू जब वो बन सकते हैं। आफ्टर परयूसल ऑफ द प्लेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट द कंटेंट्स ऑफ द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट हैज फ्रेम द फॉलोइंग इश्यूज। न्यायालय के द्वारा वादी और प्रतिवादी के द्वारा पेश किए गए अभिवचनों के आधार पर और उनके साथ पेश किए गए सारवान दस्तावेज की अंतर्वस्तु के आधार पर निम्नांकित विवादक वो विरचित किए गए। पहला जो इशू बनेगा इसमें, वेदर द प्लेंटिव कंपनी इज एंटाइटल ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेजेस और लॉस कॉज टू द गुड्स एज मेंशन इन द पैरा फर्स्ट ऑफ द प्लेंट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड द क्लेम डैमेजेस of the 1,60,000 rupees and the 8,000 rupees as interest, and burden of proving that this issue lies on the plaintiff. फर्स्ट जो आपका इश्यू बनेगा, क्या वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित माल को प्रतिवादी प्राधिकारी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण या उपेक्षा के कारण नुकसान कारित हुआ है और वादी कंपनी प्रतिवादी रेलवे प्राधिकारी से 1,60,000 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि और 8,000 रुपए क्या ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए हकदार है। ये फर्स्ट इश्यू बनेगा और इस इश्यू को साबित करने का जो भार है वो वादी पर होगा। सेकंड जो इश्यू बनेगा, whether the suit is liable to be dismissed due to the non-ownership of the plaintiff company of the above mentioned goods and not having the locus standi to present the same, and the burden of proof lies on the defendant to prove that this issue. Whether the suit of the plaintiff to be dismissed due to the non-ownership of the plaintiff company of the above mentioned goods and not having the locus standi to present the same.
प्रतिवादी के द्वारा ये आपत्ति है वो की गई कि साहब वादी कंपनी का इस माल पर है वो स्वामित्व भी नहीं है और इसलिए वादी कंपनी का वाद पेश करने का अधिकार नहीं है, और चूंकि अधिकार नहीं होने के कारण वादी का वाद है वो खारिज किया जाए, इस पर है वो इश्यू बनेगा। क्या वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित क्षतिग्रस्त माल की वादी कंपनी स्वामी नहीं होने पर और वाद पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टैंडाई नहीं होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है, ये सेकंड है वो इश्यू बनेगा। और इस इश्यू को प्रूव करने का बर्डन है वो किस पे लाई करेगा? डिफेंडेंट्स पे, प्रतिवादीगण पे। थर्ड इश्यू इस केस में ये बनेगा, वेयर द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस ड्यू टू द नॉन सर्विस ऑफ द नोटिस, non service of the notice in conformity with the provision of the section 106 of the Railway Act 1989, and to prove burden to prove the issue number third lies on the defendant, whether the suit is liable to be dismissed due to the non service of the notice in conformity with the provision of the section 106 of the Railway Act 1989। हिंदी में आप देखेंगे, क्या वादी कंपनी के द्वारा प्रतिवादी रेलवे प्राधिकारी को नोटिस रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 106 के अनुरूप प्रेषित नहीं किए जाने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है। इस मैंडेटरी प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं होने से, अज्ञापक प्रावधान की वो अनुपालना नहीं होने से क्या वादी का वाद खारिज होने योग्य है, ये इश्यू है वो थर्ड बनेगा और इसको साबित करने का भार है वो प्रतिवादी गण पर होगा। नेक्स्ट, ये भी लीगल इश्यू है, वेदर द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस as the suit barred by the virtue of the section 15 of the Railway Claim Tribunal Act 1987, and the burden to prove that issue lies on the defendant। फोर्थ जो इश्यू है, क्या वादी के वाद का विचारण रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 15 के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है। इस इश्यू को भी प्रूव करने का बर्डन है वो किस पर लाई करेगा? डिफेंडेंट्स पे, प्रतिवादी गण पे। एंड लास्ट फॉर्मल इश्यू है, रिलीफ इफ एनी टू बी ग्रांटेड, अनुतोष कोई अब प्रदत्त किया जाना चाहिए, यह औपचारिक है वो विवादक है। तो इस तरीके से इसमें 4 मेन है वो इश्यूज है। फर्स्ट इश्यू को प्रूव करने का बर्डन जो मेन कंटेंशन है वो प्लेंटिफ है, एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट ने रेज की है उन इश्यूज को प्रूव करने का बर्डन है वो डिफेंडेंट्स पे। अब इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट जो बात आती है, इसमें लीगल इश्यू इन्वॉल्व है। सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है इस सूट को है वो एंटरटेन करने का, इस सूट को ट्राई करने का, ये इश्यू डिफेंडेंट ने वो रेज किया है। ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट इसको प्रीमियरली इश्यू के रूप में वो डिसाइड करेगा। न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक विवादक के रूप में इसको है वो डिसाइड करना पड़ेगा। कोर्ट को ये पहले तय करना पड़ेगा कि कोर्ट का जुडिक्शन है या नहीं। यस, तो यहां से अपन जजमेंट राइटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जजमेंट राइटिंग, सिविल जजमेंट राइटिंग के अंदर आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट कॉम्पिटेंट कोर्ट का है वो नेम आएगा। इन द कोर्ट ऑफ द सिविल जज बीकानेर, चूंकि इसमें प्लेस क्लियर था प्रॉब्लम से, तो इसलिए आपको प्लेस का नेम भी है वो मेंशन करना होगा। इन द कोर्ट ऑफ द सिविल जज बीकानेर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स RJS, RJS is the designation and X is the symbolic name of the presiding officer. Original civil suit number /year. Then description of the parties, Messrs. S. Sethi and Company means plaintiff versus Union of India and others, the defendants. Then the title of the suit. Title of the suit, suit for the recovery of the damages। सिविल सूट के
हाँ लिखा तो जाता है, मैंने थोड़ा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि सारे नाम पेपर में भी नहीं दे रखे थे, हाँ तो इसलिए एंड अदर्स में कवर हो जाएगा, बीइंग ए प्रूडेंट स्टूडेंट और प्रूडेंट एग्जामिनर। यस, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द डैमेजेस। तो इसमें 5 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इस यहां तक के फॉर्मेट में। नेम ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट, नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेशन, ओरिजिनल सूट, सिविल सूट नंबर एंड ईयर, then plaintiff and defendants names, and fifth the title of the suit for the recovery of the damages. Sixth is concerned to the presence of the advocates. Mr. M, learned advocate या learned counsel for the plaintiff, and Mr. N, learned counsel for the defendants. हिंदी में भी देखेंगे आप, सबसे पहले जो है सक्षम न्यायालय का नाम आएगा, न्यायालय सिविल न्यायाधीश बीकानेर। सिविल न्यायाधीश बीकानेर ही क्यों आया? सिविल न्यायाधीश इसलिए आया कि ये 1,68,000 रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली का वाद है, और बीकानेर इसलिए आया कि ये जो डिस्प्यूट है वो बीकानेर से कंसर्न है, कॉज ऑफ एक्शन है वो बीकानेर में अराइज हुआ है, तो इसलिए है वो बीकानेर है, वो आपको मेंशन करना होगा। पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका पदनाम, नाम अपन ने एक्स है वो प्रतीकात्मक दिया है, और पदनाम जो है वो सिविल जज का आरजेएस रहता है। देन सिविल मूलवाद संख्या और ईयर, इसमें 2018 दे रखा था, चूंकि ये 2018 या 17 के पेपर में पूछ रखा था इसलिए ये 2018 है वो मेंशन कर रखा है। यदि आप प्रेजेंट में लिखेंगे तो इसको 2022 भी कर सकते हैं, क्योंकि सूट कब इंस्टीट्यूट किया गया ये कोई वो मेंशन नहीं था उस प्रॉब्लम के अंदर। यस, देन वादी और प्रतिवादी के वो विशिष्टियां आएगी, नाम आएगा उनका, मैसर्स एस सेठिया एंड कंपनी बनाम प्रतिवादी भारत संघ एवं अन्य। देन टाइटल ऑफ द सूट, वाद का शीर्षक आएगा, शीर्षक भी मेंशन किया जाता है, जैसे संविदा की विनिर्देश अनुपालना का वाद है तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मेंशन होता है। डैमेजेस का सूट है तो सूट फॉर द डैमेजेस ऐसा मेंशन किया जाता है। यदि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें भागीदारी फर्म के विघटन के लिए वाद। यदि धन की वसूली का वाद है तो उसमें आता है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी सो एंड सो। इंजेक्शन सूट है तो सूट फॉर द परपेचुअल एंड मैंडेटरी इंजेक्शन, शाश्वत और आज्ञापक व्यादेश का वाद, तो ये टाइटल भी मेंशन किया जाता है। देन 6th पॉइंट में उपस्थित अधिवक्तागण, वादी की तरफ से कौन है वो उपस्थित हुए और प्रतिवादी की तरफ से है वो कौन उपस्थित हुए, ये मेंशन करना होगा आपको। विद्वान अधिवक्ता एम, सिंबॉलिक नाम दिया मैंने वास्तेवादी, और विद्वान अधिवक्ता एन वास्ते प्रतिवादीगण। हाँ जी, खाली छोड़ दो या तो, या फिर आप प्रतीकात्मक लिख दो। हाँ, ये मेरा मानना ऐसा है, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ हाँ। नेक्स्ट इसके बाद जो 7th जो पॉइंट है जजमेंट, ये सेंटर में नोट किया जाएगा, हिंदी में भी निर्णय जो है वो लिखा जाएगा और अंडरलाइन होगा ये। इसके राइट साइड में इधर डेट आएगी जजमेंट की, डे, मंथ एंड ईयर, दिनांक, महीना और है वो वर्ष आएगा। देन पैरा वाइज जजमेंट स्टार्ट होगा यहां से, पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे 7th पॉइंट तक। यस, ऑल आर क्लियर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ? ओके ओके। पैरा नंबर जो फर्स्ट है जजमेंट का वो वही है जो प्रॉब्लम में अपन ने पढ़ा है, प्लांट से रिलेटेड सारी गाथा है इसके अंदर। द ब्रीफ ऑफ द सूट्स आर दैट मैसर्स बीजी एंड कंपनी नोखा इज अ पार्टनरशिप फर्म, मैसर्स पी पटेल एंड कंपनी ऊजा and entered into a contract for the delivery of the 200 bags of the cumin for the consideration of the 3.2 lakh from however before the actual transshipment of the goods। ये सारा डिस्कस कर दिया, मुझे नहीं लगता कि दोबारा सारा पढ़ के और अपना समय खराब किया जाए।
प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि ये 200 बोरी जीरा है वो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था। नोखा की एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसने ऊंजा की पार्टनरशिप फर्म से खरीदा था और उसके बाद उस माल की डिलीवरी होने से पहले बीकानेर की मैसर्स एस सेठिया एंड कंपनी थी उसको सेल कर दिया और नोखा वाली कंपनी जो खरीदार थी ओरिजिनल, उसने सेलर को है वो डायरेक्ट कर दिया कि माल डायरेक्ट आप बीकानेर के अंदर है उसकी डिलीवरी की जाए। रेलवे से भेजा गया माल जिस वैगन से भेजा गया था उससे अदर देन वैगन में बीकानेर पहुंचा, 1 महीने लेट पहुंचा। लेट पहुंचने के बाद भी जब माल को देखा वादी कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा तो बहुत क्षतिग्रस्त डैमेज पोजीशन में था और ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं था। तो उन्होंने ओपन डिलीवरी देने की मांग की, उसके लिए कोई चार्जेस भी थे वो भी जमा किए और ओपन डिलीवरी में जब देखा कि माल इस एक्सटेंट तक है वो डैमेज था कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं था, तो उन्होंने डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया। रेलवे अथॉरिटीज़ ने उस पर कितना नुकसान हुआ है प्लेंटिव कंपनी का एक उसका असेसमेंट है वो रिपोर्ट तैयार की और उसमें 1,60,000 रुपीज़ है वो नुकसान होना या डैमेज होने की है वो रिपोर्ट तैयार हुई। प्लेंटिव वो पैसे दिए नहीं गए प्लेंटिव को, तो प्लेंटिव कंपनी ने जो है वो सेक्शन 80 CPC एंड सेक्शन 106 ऑफ द रेलवे एक्ट 1987 उस एक्ट के अनुसार है वो नोटिस दिया रेलवे अथॉरिटीज़ और यूनियन ऑफ इंडिया और जो भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर उनको, और नोटिस देने के बाद अल्टीमेटली ये सूट है वो फाइल हुआ। सूट फाइल होने पर प्लांट की कॉपी के साथ समन है वो इश्यू हुआ और डिफेंडेंट्स को सर्व किया गया। डिफेंडेंट्स अपीयर हुए, WS फाइल किया अपना और WS के अंदर 3-4 बातें लेके आए। ट्रांसशिपमेंट को एडमिट किया गया, माल रवाना किया गया ऊंजा से बीकानेर के लिए, इस बात को स्वीकार किया गया। ऑनरशिप को डिनाई किया गया, मैसर्स एट सेठिया एंड कंपनी है, इनकी ऑनरशिप इस गुड्स पे नहीं है, इस बात को है वो उनके द्वारा अवर्ट या ऐसा कथन है वो किया गया। लोकस स्टैंडाई नहीं है प्लेंटिव कंपनी की, ये बात भी रेज की गई या वो डिफेंडेंट के द्वारा WS के अंदर। नोटिस जो दिया गया वो 106 जो सेक्शन है रेलवे एक्ट का उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, उसकी कंफर्मिटी से नहीं दिया गया, ये पॉइंट भी रेज किया गया। और एक लास्ट पॉइंट और रेज किया गया कि ये जो मैटर है ये सिविल कोर्ट का जुडिक्शन इसके अंदर बार्ड है, ये रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल जो है उस 1987 का जो एक्ट है उसके अंदर या 1989 का भी देखेंगे एक्ट, उसमें जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल बना हुआ है उस ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन है वो डिस्प्यूट को एंटरटेन करने का सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार है। और एक बात और कही कि ये जो नुकसान हुआ है ये ईश्वरीय कृत्य से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड से हुआ है, इसमें रेलवे अथॉरिटीज के एम्प्लॉई है उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। ये सारी WS की बातें थी और उस पर इश्यूज क्या बने ये भी अपन ने डिस्कस कर लिए। हाँ नहीं लिखना जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि लंबा हो जाएगा आप इशू बनाने बैठ गए तो। ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि इशू का सेपरेट क्वेश्चन भी आता है तो आप यहां से देख के है वो बना सकते हैं, तो वहां आपको नट सेल में ही है वो चलना है। एक पैरे में बताना है आपको कि अभिवचनों का है वो रीडिंग एटसेट्रा करने के बाद और डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कोर्ट ने है वो इश्यूज फ्रेम किए और उनको एक्सप्लेन किया पार्टीज पे, एंड उसके बाद जो है ये सिचुएशन थी। जो कुछ भी प्रीमिनरी इशू है तो फिर प्रीमिनरी इशू का पॉइंट आ जाएगा, और यदि ट्रायल स्टार्ट हुई तो उसमें ऐसा आ जाएगा कि ट्रायल है वो कमेंस की गई और प्लेंटिफ की एविडेंस में वो फाइल फिक्स की गई। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट साइलेंट रहे। हाँ क्या भैया? हर एक जैसे एक विवादक बना, एक इशू बनाया, तो हर एक इशू के ऊपर अपन को मतलब अपना मतलब आंसर देना पड़ता है ना कोर्ट को। हाँ कोर्ट को अपना तो डिसीजन, हर एक इशू पे अपन नहीं दे पाएंगे अगर ऐसे इशू नहीं बनाएंगे, तो ये भी तो हो सकता है अपना। ओके इसका क्या होगा थोड़ा? हाँ ये मिस्टर जो है वो हर्ष है, इनका कहना ये है कि इशू जजमेंट के अंदर मेंशन करने है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट हर इशू पे अपना है वो डिसीजन देता है, तो वो कैसे है वो डिसीजन दे पाएगा कोर्ट के सामने है वो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन या उधारी प्रश्न है वो क्या थे। तो कोर्ट इसमें क्या करता है कि जो इशू बने हुए रहते हैं फाइल के अंदर उनको पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के रूप में देखता है जजमेंट के अंदर। एक पैरे के अंदर ऐसा है वो वर्णन आ जाता कि कोर्ट के सामने ये विचारणीय बिंदु थे, वो इशू है वो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो उनका कहीं न कहीं हवाला आ जाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो होगी उसमें आ जाएगा, या इश्यू नंबर सो एंड सो ऐसा ब्रीफ में आ जाएगा। यस क्या कह रहे थे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कुछ बोला था।
अभी देखना आप वर्तमान में, मुझे ऐसा क्यों रिकॉल हो रहा है कि इश्यू फ्रेमिंग भी है आपके। पहले होता था सर, ये लास्ट टाइम ही हटाना दिया था, अब तो चाहे अच्छा, अब रही बात इश्यू हट भी गया है, यदि आपको इश्यू बनाने नहीं आते तो जजमेंट में एक लाइन भी नहीं लिख सकते आप। यदि आपको इश्यू बनाना नहीं आता है, डिस्प्यूट ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेन कंट्रोवर्सी क्या है पार्टीज के बीच में, तो आप क्या जजमेंट लिखोगे। यदि ग्रामर नहीं आती, आपको अंग्रेजी का वर्ड भी नहीं आता, और आप ऐसे लिख दोगे क्या इंग्लिश का। इश्यू बेस है जजमेंट का। जजमेंट लेखन के लिए विवादक आपको समझ में आने जरूरी है, इश्यूज क्या है, इसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते आप। यस, पैरा नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन। पैरा नंबर फर्स्ट है वो प्लांट के ब्रीफ फैक्ट्स से रिलेटेड था। पैरा नंबर सेकंड डब्ल्यूएस के ब्रीफ फैक्ट्स के थे, इससे रिलेटेड था। और पैरा नंबर थर्ड है वो इश्यूज से रिलेटेड था। प्लांट के फैक्ट्स क्या है ये प्रॉब्लम में अपन ने पढ़ लिए, डब्ल्यूएस के फैक्ट्स क्या है ये भी प्रॉब्लम में पढ़ लिए, दोबारा डिस्कस कर लिए। इश्यू क्या थे ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए। पैरा नंबर 4 पे आते हैं अपन डायरेक्ट इस केस में। हाँ जी, डब्ल्यूएस वो प्रॉब्लम में लिखा हुआ था ना, वैसा ही समन इशू किए गए, डिफेंडेंट ने वो डब्ल्यूएस फाइल किया, डब्ल्यूएस के अंदर ये बातें उठाई उसने। ये किसका माइक चालू है? माइक अपने बंद रखे। यस, ये इस तरीके से पैरा नंबर सेकंड है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि पैरा नंबर फर्स्ट का एंड कहां से हो रहा है, सिविल वाद के रजिस्टर के अंदर उसको दावे को दर्ज करने से हो रहा है। तो अब दर्ज करने की बात की जो स्टोरी है वो पैरा नंबर 2 में आएगी। समन इशू किया गया और उसके बाद डब्ल्यूएस फाइल हुआ, और डब्ल्यूएस के अंदर क्या क्या बातें हैं वो रेस की गई है वो डिफेंडेंट के द्वारा। Summon issued to the defendant authority and other concern which were produced in the court after the due service, and defendant appeared before the court on the date of the hearing and made submission for the filing of the written statement for the defense and the answer to the claim of the plaintiff's company, and defendant filed the WS where in the so and so facts mentioned. हिंदी में भी आप देखेंगे तो दूसरा पैरा, जो पहला पैरा कैसे समाप्त हो रहा है, सारी स्टोरी जो दे रखी थी प्रॉब्लम में वो, उसके बाद एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी कि इसको बात जांच है, वो इस दावे को या इस बात को सिविल वादों के रजिस्टर में दर्ज किया गया। और दूसरा पैरा जो स्टार्ट होगा, प्रतिवादी रेलवे प्राधिकारी एवं अन्य को समन है वो जारी किए गए और बात सम्यक तामील न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई की तारीख पर प्रतिवादी गण उपसंजात हुए और दावे का उत्तर देने के लिए बचाव में लिखित कथन पेश करने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा बचाव का लिखित कथन पेश किया गया, जिसमें ये माल की रवानगी स्वीकार की, मालिक होने को अस्वीकार किया, आदि तथ्य जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए, ये सारी बातें आई। और अंत में एक लाइन आएगी, क्या ये दावा जो है वो खारिज होने योग्य है, दावे को खारिज किया जाए, ये है वो डिफेंडेंट की प्रेयर है, इसको भी है वो मेंशन करना होगा आपको। यस, पैरा नंबर 4, in the present case issue of law has been raised that the plaintiff suit is barred by the law, which should be decided as a preliminary issue, and it is necessary and expedient to decide the such issue, and the burden of the proof to prove the issue number 4 lies on the defendant. हस्तगत प्रकरण में वादी के द्वारा विधि द्वारा, वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने का विधि का विवादक है वो अंतर्बलित है, शामिल है, जिसको प्रारंभिक विवादक के रूप में विनिश्चित किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है, आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है, और विवादक संख्या 4 को साबित करने का भार है वो प्रतिवादी गण पर है। तो इसमें आपको कोर्ट को एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि ये जो इश्यूज ऑफ लॉ जो इन्वॉल्व है, इसको प्रिमिनरी इश्यू के रूप में वो डिसाइड किया जाना है, वो एक्सपीडियंट है, नेसेसरी है, आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है। इसलिए इस पर्टिकुलर इश्यू को ही कोर्ट है वो पहले ट्राई कर रहा है इसमें। देन पैरा नंबर 5,
During trial, in proof of the issue number 4, officer of the defendant's authority produce a photostat copy of the Railway Claim Tribunal Act 1987. विचारण के दौरान उक्त विवादक संख्या 4 को साबित करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी के अधिकारी ए ने रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 15 की एक फोटोकॉपी भी पेश की। And after then, the arguments. चूंकि इश्यूज ऑफ लॉ है तो इसमें कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, सीधा लॉ है वो बताना था, और उसकी एक फोटोकॉपी भी है वो कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी है। और कोर्ट का अटेंशन है वो उस तरफ ले जाया जा रहा है कि चूंकि ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है ये रेलवे को गुड्स है वो एंट्रस्ट करने के बाद या सौंपने के बाद है वो उद्भूत हुआ है, इसलिए इस केस का जो जुडिक्शन है वो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का है और सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। कंसर्न सेक्शन पढ़ के भी वकील साहब ने सुना दिया जज साहब को, और अब डिसाइड करना उनको कि ये दावा जो है वो सिविल कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है या कॉग्निजेबल है या सिविल कोर्ट का जुडिक्शन है वो इसमें बार्ड है। Arguments of the both sides were heard. Facts were pursued. The learned advocate for defendant argued that the trial of the plaintiff suit is barred by the virtue of the section 15 of the Railway Claims Tribunal Act 1987 and pleaded that the court to take the notice to this fact and dismiss the plaintiff suit. The ruling of the Supreme Court were produced in this regard. Plaintiff's advocate argued that the question of the jurisdiction is the mixed question of the law and fact and which should be decided along with the other issues during the trial and are not to be decided as a preliminary issue. उभय पक्षों की बहस है वो सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी का वाद का विचारण धारा 15 रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा वर्जित है और इस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार पूर्ववर्ती निर्णय भी पेश किए गए। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि क्षेत्राधिकार का प्रश्न जो है वो विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसे विचारण में अन्य विवादक के साथ विनिश्चित किया जाना चाहिए, प्रारंभिक विवादक के रूप में विनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसमें आर्ग्यूमेंट्स लॉ तो जो था वो पढ़ के भी सुना दिया और उसकी एक फोटोकॉपी भी पेश कर दी, और उसके बाद वही बात जो डिफेंडेंट्स के एडवोकेट है उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि साहब इसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है, इसलिए वो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया जाए। और प्लेंटिफ के एडवोकेट ने ये आर्ग्यू किया कि ये जो जुडिक्शन का इश्यू है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट है और जिसको ट्रायल के दौरान अदर इश्यूज के साथ है वो डिसाइड किया जाना चाहिए, इसको प्रीलिमिनरी इश्यू के रूप में डिसाइड नहीं किया जाए। अल्टीमेटली कोर्ट का कंक्लूजन है वो क्या रहता है, ये पैरा नंबर 7 में देखेंगे। अब कोर्ट गॉन थ्रू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द अफोरसेड एक्ट एंड इट इज प्रूव्ड बाय द सेक्शन 15 read with the section 13 of the Railway Claims Tribunal Act 1987 that only the Railway Claims Tribunal has exclusive jurisdiction in respect of the present suit for the damages in case the damage is caused to the goods which are assigned or delivered to the railway administration. Moreover, the jurisdiction of the civil court and the other authorities is barred. Question of jurisdiction is the pure question of law and it cannot be regarded as a mixed question of the law and fact. Plaintiff suit is instituted for the recovery of the damages caused to the goods by the negligence of the railway administration, which in the opinion of the court comes in the ambit of the subsection 1st of the section 13 of the Railway Claims Tribunal Act 1987, whose cognizance or the trial is barred by the civil court. The issue number 4 is decided in favor of the defendant and against the plaintiff's company. पैरा नंबर 7 आप हिंदी में देखेंगे। रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 15 सपठित धारा 13 के अध्ययन से यह साबित है कि रेलवे प्रशासन को वाहक के रूप में परिवहनित करने के लिए सौंपे गए माल को यदि क्षति आदि होती है उसके संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा किए जाने पर रेलवे दावा अधिकरण का अनन्य क्षेत्राधिकार है
और सिविल न्यायालय और अन्य अधिकरण का क्षेत्राधिकार वर्जित है। क्षेत्राधिकार का प्रश्न विशुद्ध विधि का प्रश्न है और इसे तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न नहीं माना जा सकता। इस प्रकार वादी का दावा रेलवे प्राधिकारी को सौंपे गए 200 बोरे जीरा के क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो न्यायालय की राय में रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 की परिधि में आता है, जिसका विचारण धारा 15 रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम में सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाना वर्जित है। इस प्रकार विवादक संख्या 4 प्रतिवादी गण के पक्ष में और वादी के विरुद्ध तय किया जाता है। कोर्ट ने जो बेयर प्रोविजन थे सेक्शन 15 रीड विद द सेक्शन 13 ऑफ द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 उसका अध्ययन करने के बाद जो धारा 13 की उपधारा 1 में उस एक्ट में जो दे रखा है कि यदि माल रेलवे प्रशासन को सौंप दिया गया है और माल को सौंपने के बाद और डिलीवरी से पहले यदि किसी प्रकार की क्षति होती है उस माल को, तो ऐसी कंडीशन में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होगा एंड सिविल कोर्ट एंड अदर ऑथोरिटीज अदर ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन एक्सप्रेस रूप से बार्ड है। रीड विद द सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी। इसलिए और जो दूसरा पॉइंट रेज किया गया था प्लेंटिफ कंपनी के एडवोकेट के द्वारा कि साहब जुडिक्शन का जो इश्यू है या क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट है और अदर इश्यूज के साथ तय होना चाहिए। कोर्ट ने उस पर भी अपनी वो फाइंडिंग दी है कि ये जुडिक्शन का जो बिंदु है या क्षेत्राधिकार का जो प्रश्न है ये प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये विशुद्ध रूप से है वो विधि का प्रश्न है, ये विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, वो नहीं माना जा सकता। और अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कंसीडर किया है कि ये रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन और सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है, ये इश्यू जो है वो डिफेंडेंट्स के फेवर में और प्लेंटिफ कंपनी के अगेंस्ट है वो तय किया गया। नेक्स्ट पैरा। हाँ जी, 15 तो उसमें दे रखा था, 13 फिर हमने पढ़ा है उस एक्ट को, पढ़ के पता लगाया है इस क्वेश्चन आने के बाद। परीक्षा देने के समय हम भी होते यदि उस परीक्षार्थी की स्थिति में, तो हमें भी पता है वो नहीं होता। ऐसा यदि इस तरीके की कोई बात आती है, ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, तो आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। हाँ जी, क्या 106 में कोई उसमें नोटिस में तो एरर थी या नहीं थी वो तो अलग बात है। जब जुडिक्शन का बिंदु है तो वो तो लॉ का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ही दावा है, उठ सकता है केवल, तो उन दूसरे इश्यूज को आपको देखने की जरूरत नहीं है। हेलो, बाकी लोग माइक बंद रखे, जो एक कैंडिडेट बोल रहा है उसके अलावा। हाँ नंजना जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट के लिए मान लिया कि परीक्षार्थी को पता नहीं था, बट पढ़ाने वाले व्यक्ति ने यदि बाद में पता लगा लिया हो कि इस 15 में क्या दे रखा है, तो उसका 15 जब पढ़ोगे आप तो उसका कनेक्शन 13 से दे रखा है। तो अब जब पढ़ाने की बात, जब आपके बात ध्यान में आ गई कि 15 का कनेक्शन 13 से, और 13 में मुख्य बात दे रखी है कि रेलवे प्रशासन को कोई माल सौंप दिया और माल सौंपने के बाद क्षति हुई है, तो उसमें अन्य क्षेत्राधिकार है वो रेलवे दावा अधिकरण का होगा। तो ये तो जब प्रॉब्लम में वो एक्ट दे रखा है, तो हमने गूगल से उस एक्ट को सर्च किया, उसके बाद सेक्शन 15 पढ़ा, उसका कनेक्शन 13 से बताया, तो 13 पढ़ना पड़ा हमको, और 13 पढ़ने के बाद हमने 15 और 13 दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका आपका आंसर है वो तैयार किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है इसमें। आपकी जगह मैं भी होता तो मैंने क्या बोला कि मुझे धारा 13 पता नहीं होती, मैं 15 के अनुसार ये अज्यूम करके मानता कि हाँ 15 में ऐसा प्रावधान है, तो इसलिए इस इशू को धारा 13 का हवाले दिए बिना हवाला दिए 15 के आधार पर मैं ये मानते हुए कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है और ये इशू जो है ये प्रतिवादी गण के पक्ष में और वादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है। हाँ जी,
सेक्शन मेंशन किए बिना भी अगर पता चल रहा है कि इशू क्या है तो कर सकते हैं? सेक्शन मेंशन किए बिना इशू क्या है, जैसे रेलवे एक्ट की सेक्शन नहीं पता 13-15, लेकिन पता चल रहा है कि इशू क्या है तो सेक्शन मेंशन किए बिना भी इशू फ्रेम कर सकते हैं? कोर्ट का जुडिक्शन बार्डर कोई सेक्शन मेंशन नहीं कर रखा है, ऐसा आपका कहना प्रॉब्लम है। जी सर, तो कैसे बार्ड है ये बताना तो पड़ेगा ना डिफेंडेंट को, कैसे बार्ड है, किसी लॉ के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन है या इम्प्लाइडली बार्ड है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट सूट है ये, या प्योरली पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, क्या है ये, ऐसा कुछ न कुछ तो बताना। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक डिनाइल इन द WS, नॉट अ बेयर डिनाइल। आपका कारण होना चाहिए डिनाई करने का, और यदि कारण नहीं है तो सेल डीम टू बी एडमिटेड एज पर द रूल 5 ऑफ द ऑर्डर 8। यस, सर आपके अनुभव के आधार पे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जस्ट सेक्शन 15 मेंशन कर दिया, तो क्या हम पॉजिटिव रिव्यू करके चले कि हाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है सर? ऐसा है कि ऐसा मान के चल सकते हैं अपन, अगर परीक्षा में ऐसा दिया जा रहा है तो बिल्कुल वो झूठा ऑब्जेक्शन लॉ का नहीं आ सकता, विधि के बिंदु पर है वो नहीं आ सकता। जब मेरे पास भी पेपर होने के जस्ट बाद जब ये क्वेश्चन आया था, बाकी लोग अपना माइक बंद करें, उर्मिला माइक बंद करें अपना, यस। तो जब मेरे पास पेपर होने के जस्ट बाद ये जब आया पेपर या ये क्वेश्चन जब मुझे मिला तो मैं भी इसमें कंफ्यूज था कि पता नहीं क्या होगा इसमें, परंतु जब एक्ट को देखा तो ऐसा है वो उसमें ऐसा एक्सप्रेस रूप से दे रखा था 15 और 13 में, तो पेपर सेटर जो है वो बिल्कुल है वो जो चलने लायक नहीं हो ऐसा कोई विधि का ऑब्जेक्शन है वो नहीं डाला जाएगा उसमें। कर सकते हैं यदि जुडिक्शन के बिंदु का किसी स्पेशल लॉ का हवाला देते हुए और उसका सेक्शन मेंशन करते हुए यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा प्रोविजन होगा सिविल कोर्ट के जुडिक्शन का बार करने का, ऐसा अनुभव के आधार पर कह सकते हैं अपन। हाँ जी, तो सर उसमें फिर कौन सा एक्ट इससे अपन क्षेत्राधिकार को डिनाई करते हुए? अपन सेक्शन 9 है ना CPC का, इम्प्लाइडली बार्ड का, उसमें एक्ट की कहां जरूरत है, एक्सप्रेस में एक्ट की आवश्यकता है, इम्प्लाइड में एक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। यस, पैरा नंबर 8, primarily issue number 4 is decided in favor of the defendant as per aforesaid finding, the suit is dismissed, the parties shall bear their own cost and a decree shall be prepared accordingly। लास्ट जो पैरा है जजमेंट का, प्रारंभिक विवादित संख्या 4 प्रतिवादी गण के पक्ष में तय होने से उपयुक्त वाद का विचारण करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अतः उपयुक्त निष्कर्षानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने अपने खर्चे है वो वहन करे और तद अनुसार डिग्री पर्चा है वो तैयार किया जाए। देन सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द सील ऑफ द कोर्ट, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा। एंड आफ्टर देन द वन सेंटेंस, दिस जजमेंट हैज प्रोनाउंस्ड टुडे सो एंड सो डेट इन द ओपन कोर्ट, यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक इतनी इतनी को लिखवाया जाकर सुनाया गया। एंड आफ्टर देन अगेन द सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द सील ऑफ द कोर्ट, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा है वो आएगी। यस, राजेंद्र जी है क्या ग्रुप में? राजेंद्र सुखवाल, हाँ राजेंद्र जी, आपने ही पूछा था ना कल इसके बारे में। कल आपने एक जजमेंट की बात कही थी कि ऐसा रेलवे एक्ट का कोई दे रखा हो तो उसमें क्या होगा, इसी प्रॉब्लम का कह रहे थे क्या आप? ठीक है, शायद मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिल गया इसका। हाँ हाँ, एग्जाम में फेस की गई बात और जिसके गलत होने की संभावना ज्यादा। दिव्य प्रकाश अपना माइक ऑफ करें। यस, तो वो चीजें जो आप गलत करके आते हो पेपर में या जहां आपको संभावना रखती है, राजेंद्र जी आप भी बंद कर दें माइक, जहां आपको लगता है कि गलत होने की संभावना है तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक है वो याद रहती है। हम भी जब प्रीलिम्स का कोई भी पेपर दे के आते थे, जहां जहां गलती करते थे
वो हमें आज भी बहुत अच्छे से याद है, और मेंस में भी कहीं हमने गलती की है तो वो भी अच्छे से वो याद है। तो इसलिए जिसने फेस किया है इस प्रॉब्लम को वो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर है वो इस क्वेश्चन का, ये जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन था, इस तरीके से अपन जजमेंट है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्टकट है वो जजमेंट है, क्योंकि केवल एक सिंगल इश्यू पर, प्रीमियरली इश्यू के पर है वो डिसाइड हुआ है। फुल ट्रायल का जजमेंट भी अपन आगे है वो देखेंगे। अभी हाँ जी, डिक्री बनेगी ना, तद अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाए, कोर्ट का डायरेक्शन है ना। हाँ वो तो बनेगी ना अलग से, आपको पता है उसका फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट ही अलग है, वो जजमेंट के बाद बनती है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसका। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? डिक्री आपको बनानी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट ये डिक्री बनाने का डायरेक्शन लिखना जरूरी है, ये लाइन आनी आवश्यक है। ओके, कोई किसी प्रकार का रीजनेबल डाउट हो आपका ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, ये जो जजमेंट अपन ने प्रॉब्लम पढ़ी और उस पर लिखा, तो बताएं आप लोग, और उसके बाद ऑनलाइन वालों से बात करते हैं, क्योंकि 10 बजे से सर की क्लास है आगे, सुनील रुलानिया सर की इंग्लिश ऐसे की 10 से 11, और उसके बाद मेरी क्लास है नेक्स्ट आधा घंटा बाद में 11:30 से है वो 12:30, या मे एक्सटेंड टू द 1 PM। यस, किसी प्रकार का कोई डाउट ऑफलाइन स्टूडेंट्स का? हाँ जी, ऑनलाइन में से भी किसी का मोस्ट रीजनेबल डाउट हो इस डिस्कस की गई प्रॉब्लम के बारे में तो बताएं। यस, अंकुर जी क्या कह रहे हैं आप? अंकुर श्रीवास्तव। सर कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छा समझाया सर आपने। सर एक निवेदन है, पेटीएम नंबर पे सर अगर मिल जाता तो थोड़ा इजी है। सब मिल जाएगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है। ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट। अभी सर की क्लास है वो शुरू होने ही वाली है, आप लोग तैयार रहें। मीटिंग आपकी हम कंटिन्यू ही रखेंगे, मीटिंग एंड नहीं करेंगे। हाँ जी, संडे की हर दिन क्लास हो रही है, एक आध दिन तो बख्श लिया करो। कल मुश्किल है, कल तो रेस्ट करने दो आप जाटो साहब। मेरा माइक ऑफ हो गया। हेलो, आवाज आ रही मेरी? उनको बुलाना, करण जी को, 1 मिनट, आशुतोष। यस।